तो गुरु के प्रति हमें आकर्षण साधना स्तर पे ना रहे तो भी हम गुरु का सेवा नहीं छोड़ते। So that is a Swarup Lakshana for a disciple. What is Swarup Lakshana in regards to Guru? That is commitment and obedience to order of Guru. That is Swarup Lakshana of being a disciple to spiritual master. Tatastha Lakshana is whether he has got attachment or not. No. Tatastha Lakshana is he has got attachment. So that Tatastha Lakshana, sometimes that attachment may get manifested, sometimes it may not be there. But Swarup Lakshana, that obedience and commitment should always be there. That's what we were discussing. वो हम डिस्कस कर रहे थे। और क्या आपको याद है? कोई किसी और कोई बता सकते कुछ पॉइंट्स? अच्छा बताया आपने आशीष। वेरी नाइस। थैंक यू प्रभु जी। Okay, any more points? What do you remember from yesterday's discussion? Prabhuji, can you please repeat a Tatastha Lakshana? What did we say? Tatastha Lakshana is attachment to one's spiritual master. So that is present when one is situated on a spontaneous platform of devotional service. On a sadhana stage, that firm attachment may be there, may not be there. But the commitment to following the orders of Guru should always be there. In either stage, in the sadhana stage and in the siddha stage, दोनों stage में होना चाहिए। सुप्रभात सुमित्रा माता जी। हरे कृष्ण दंडोत प्रणाम प्रभु जी। आपने गुरु के वो बताए थे टाइप्स, जैसे श्रवण गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु होते हैं हमारे। ओके, ये हमने ये जीव गोस्वामी के संदर्भ में आता है। श्रवण गुरु काफी सारे आध्यात्मिक शिक्षकों से हम सुनते हैं। कभी कभी श्रील प्रभुपाद उनको टीचर भी कहते हैं, टीचर्स। जैसे एक ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण का काम होता है शिक्षा देना। So there are various spiritual teachers, and then there's Shiksha Guru, and among prominent Shiksha Guru, the most prominent Shiksha Guru becomes one's Diksha Guru, whose instruction, every instruction to follow. Okay, any more point you remember from yesterday's discussion? The attachment and selection of Guru also was there. It should be based on how well this Guru is obedient to his spiritual master and how he is in devotion, you said. Yes, it should not be based upon what? It should not be based upon his charm or the external appearance or the charisma or anything as such. Yeah, it should not be primary consideration. The primary consideration should be महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए कि हमारे गुरु उनके गुरु के प्रति कैसे समर्पित है, कैसे वो अपने गुरु का आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और परंपरा में जुड़े हुए हैं। वेरी गुड। एनी मोर पॉइंट? Devotees can switch on their cameras to some more devotees. Yes. और क्या डिस्कस किया था कल? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जो शिष्य होता है उसके दो लक्षण होते हैं, एक स्वरूप लक्षण और एक गौण लक्षण। लक्षण ही बोलेंगे ना? हाँ, ये कह सकते हैं आप। यस, जस्ट वी डिस्कस दिस पॉइंट। यस, स्वरूप एंड या तटस्थ। स्वरूप लक्षण मतलब उसमें आज्ञाकारिता होनी चाहिए अपने गुरु के प्रति, ये मेन लक्षण है। स्वाभाविक होता है ये, और होना भी चाहिए। और गॉड में उनके प्रति प्रेम, अटैचमेंट। yes, it may be there, it may not be there, but the obedience should always be there. That commitment to spiritual master should always be there. Okay, और क्या पॉइंट डिस्कस किया था कल हमने? प्रभु जी मैं Yes, please share. Dandavat pranam Prabhu ji. Prabhu ji, we had also discussed about like the difference between Shiksha Guru and Diksha Guru, that because Diksha Guru has given us a commitment to take us back to Godhead, we have to be giving utmost respect and we have to treat him like God. He is in the same position as Krishna. Right. For a disciple. Right. So, yes, and secondly, even Shiksha Guru can be
लाइक जिससे भी हमको शिक्षा मिलती है वो शिक्षा गुरु है, जिससे भी हमने कुछ सीखा है ही कैन बी अ शिक्षा गुरु। ऐसा जरूरी नहीं है कि दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु कैन बी इन्यूमरेबल। Good. Yes, there can be many शिक्षा गुरुस. So कई सारे भक्त हैं कि आजकल हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी के प्रवचन या गुरु महाराज के प्रवचन इतने नहीं सुनते हैं, परंतु इस्कॉन के कई सारे फेमस गुरु या बाहर के भी गुरु के प्रवचन सुनते हैं बहुत बार, और उन्हें अट्रैक्शन रहता है, परंतु हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है। जैसे Yes. किसने वचन दिया है कि 16 माला करने पे आपको भगवत धाम लेके जाए। हाँ, अपने इसलिए दीक्षा गुरु हमें में। दीक्षा गुरु और शिला प्रभुपाद जी है ना, शिला प्रभुपाद जी ने बताया क्या Yes. 16 माला कीजिए, शास्त्रों का पालन कीजिए। किसने हमें Yes. फैसिलिटी दिया भक्ति करने, है ना? तो इसको स्थापित शिला प्रभुपाद जी ने किया, जिससे मंदिर जा सकते हैं, राधा कृष्ण अर्च वगैरह का सेवा हमें मिलता है, वृंदावन धाम में मंदिर है, वहां पे जाते हैं, धाम के बारे में जानकारी मिलता है। और so जी प्रभु। there are few more considerations we learn actually for a guru. A disciple reciprocate to a guru based upon few more characteristics or few more points we discussed. What is that? कि शिष्य जो होता है गुरु के साथ और वो समर्पित होता है, क्यों? Based upon the commitment of a spiritual master, कि गुरु का कितना commitment है disciple के लिए, that is shown by what we discussed. Prabhuji, we also discussed that whatever Guru Maharaj has instructed us, we have to take it as a life and death. We cannot we should always be ready to serve, and we should always be ready to follow the instructions of the Guru, no matter what. Yes, we should be ready to follow the instruction of spiritual master. So I was asking कि गुरु का commitment to a disciple, or the disciple's reciprocation to guru also based upon few more factors, like the commitment of a spiritual master. That spiritual masters, certain spiritual masters they're very committed. Some spiritual master will just give a class and they will go. Okay, shiksha gurus, they are giving instructions, but the spiritual master takes the whole responsibility of वो गुरु जो होता है, कुछ शिक्षा गुरु बस क्लास देंगे, परंतु शिक्षा गुरु आपको इस संसार से, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत लेके जाने का कमिटमेंट लेते हैं. So definitely they deserve more respect than any other shiksha guru, because nobody takes, of course they are supporting, sometimes definitely shiksha guru also takes that commitment to take you gradually in the path of love of God, कि भगवत प्रेम के मार्ग पे आपको अग्रसर करने का जो जिम्मेदारी है, कभी-कभी वो जिम्मा शिक्षा गुरु भी लेते हैं, डेफिनेटली दीक्षा गुरु जिम्मा लेते हैं. तो जो गुरु इस प्रकार का कमिटमेंट लंबे समय के लिए लेते हैं, आपको धीरे-धीरे इंस्ट्रक्ट करके आपको धीरे-धीरे इस भक्ति के पाथ पे आगे लेके जाने का, ऐसे गुरु ज्यादा रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं. सेकंड, रिस्क आपके लिए वो डिस्कस किया था हमने, गुरु कितना रिस्क लेते हैं आपके लिए. तो श्रील प्रभुपाद जी हम देखते कि श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में इस भारत को छोड़ के अमेरिका गए. तो दो प्रकार के हमने वैष्णव का वर्णन किया था, भजनानंदी और गोष्ठानंदी. तो शास्त्रों में भजनानंदी परफेक्ट स्टेज पे विरासित अवस्था में, और गोष्ठानंदी साधक अवस्था में भी रहा, तो भी उसको पूर्ण माना गया है. किसे? भजनानंदी को. गोष्ठानंदी का क्या कैरेक्टरिस्टिक देखा था हमने कि गोष्ठानंदी जो उनके पास आता है बस उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, बट उनका प्राइमरी फोकस रहेगा मेरा आध्यात्मिक जीवन. If somebody comes to them, they may share Krishna consciousness, but for Bhajanandi, he goes out of his way actually for distributing Krishna's mercy, sharing Krishna's instructions. So he may not be situated at a perfect level, still actually he deserves, he's considered more complete. So Srila Prabhupada हम देखते हैं कि वो हमारे लिए कितना सारा रिस्क लिए, खतरा उठाया कि इतने एडवांस एज में इतना उनको हार्ट अटैक आया, तो भी प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उनके पास कोई पैसे भी नहीं थे, और वहां पे रह के प्रभुपाद जी ने आंदोलन चालू किया. और प्रभुपाद जी कितने सारे मंदिर को ले कितना सारा ट्रैवलिंग किए, तो इतना सारा रिस्क उठाया, तो ऑटोमेटिकली श्रील प्रभुपाद विल अट्रैक्ट मोर ऑफ आवर attention, respect. And similarly other spiritual masters, those who take more risk, actually definitely they deserve more commitment by the disciple, more surrender. That भी हमने देखा था. तीसरा देखा था हमने फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, जो गुरु शिष्यों के लिए फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने सारे मंदिर बनाए, या कोई आउट ऑफ द वे जाके, बिकॉज सिर्फ इंस्ट्रक्शन देके शिष्य फॉलो कर पाएगा उसका अभी कलयुग में बहुत मुश्किल है. लोगों को
जब तक सात्विक जीवन जीने के लिए आप कोई फैसिलिटीज नहीं बनाते हो, जहाँ पे भक्त साथ में रहे और रेगुलर उनको सत्संग होता रहे, अर्च गुरु की स्थापना हो, जहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, unless these facilities are there, it's difficult to render devotion service. Our devotion, if you don't go to temple for long time, हम देखेंगे हमारा भक्ति थोड़ा थोड़ा डावाडोल होने लग जाएगा, जब तक भक्तों को नहीं मिलते नहीं जाते। तो इसलिए जो डिवोटीज हमारे लिए फैसिलिटीज क्रिएट करते हैं, रिस्क लेते हैं, क्योंकि फैसिलिटी क्रिएट करने में, उसको मैनेज करने में उसमें कितना सारा मानसिक ताप लेना पड़ता है। तो गुरु तो भी जैसे एक बार मुझे पास टाइम याद है कि प्रभुपाद जी एक मंदिर लेना है, नहीं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। भक्तों ने कहा कि उसको बहुत खर्चा है, $few million ऐसे खर्चा था। प्रभुपाद जी बोले छोड़ो, कौन एंजाइटी लेगा, छोड़ दो उसको। और फिर कुछ देर प्रभुपाद जी बैठे थे, फिर आधा एक घंटे बाद प्रभुपाद जी ऐसा बुट्टी लिए और ऐसा टेबल पे आले, वी मस्ट टेक एंजाइटी। प्रभुपाद जी बोले वी मस्ट टेक एंजाइटी फॉर कृष्णा से, और ले लो बोले वो टेम्पल, हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, हम चुका देंगे उतना पैसा। सो जो गुरु होते हैं इस प्रकार से शिष्यों को उद्धार करने के लिए सब प्रकार का एंजाइटीज, मानसिक ताप सहन करते हैं, जिससे शिष्यों को उद्धार, उनको फैसिलिटी मिले। तो प्रभुपाद जी ने कितना स्ट्रगल किया वो जो मंदिर प्राप्त करने के लिए, हम देखते हैं कितना सारा एंजाइटी लिया, कितना सारा उनको गुंडों का सामना करना पड़ा, और कोर्ट कचहरी में जाना पड़ा, वकीलों के साथ डील करना पड़ा, भक्तों को भी इतना सारा टेंशन था भक्तों के बीच में। तो भी प्रभुपाद जी ने इतना सारा मानसिक ताप लिया, क्योंकि उन्हें पता था ये फैसिलिटी हजारों लोगों को कृष्ण भावनामृत में आकर्षित करेगा। तो जो गुरु इस प्रकार से भक्तों के लिए फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, रिस्क लेते हैं, रेगुलर कमिटमेंट देते हैं, ऐसे गुरु डेफिनेटली शिष्यों के आकर्षण को या उनके दे डिमांड और दे कमांड मोर रिस्पेक्ट, not demand but they command more respect from the disciples, right? Now so we see all these factors also when we are offering our respect to spiritual master. We see these factors also. Anything else you remember from yesterday's discussion? Prabhuji, you just said the Bhajananandi and Ghoshanandi, right? These are, what are these two types of disciples, is it? Mataji, these are two kind of Vaishnavas. Vaishnavas. भक्त गोष्ठानंदी यानी जिनको प्रचार में आनंद आता है, भजनानंदी जिनको भजन में आनंद, भजन यानी अपना साधना में, जो प्रचार में इंटरेस्ट, मुझे जैसे बताया कि उनके पास में कोई आया तो वो बताएंगे कृष्ण के बारे में, but they will not go out of their way for preaching Krishna consciousness. Any more point? Yes, और कोई पॉइंट आपको याद है कल के डिस्कशन से? अलग अलग प्रश्न भी पूछे गए थे कि शिक्षा गुरु कौन शिक्षा गुरु, जैसे कितने सारे डिवोटीज से हम सुनते हैं, then who among them is a शिक्षा गुरु, right? This question was asked. So there are multiple understanding. One is anybody who knows the science of Krishna, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु होए, जो भी कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है, जो भी हमें कृष्ण के बारे में शिक्षा देता है वो गुरु है। दूसरा, जो हमें भगवान के बारे में ज्ञान देता है, उसे भी शिक्षा गुरु कहते हैं या वर्तमान प्रदर्शक गुरु कहते हैं। सबसे पहले ज्ञान देता है आध्यात्मिक जीवन के बारे में। जैसे ध्रुव महाराज के केस में उनकी माँ जो थी सुनीति, वो उनकी शिक्षा गुरु या वर्तमान प्रदर्शक गुरु थी, और ध्रुव महाराज के दीक्षा गुरु थे नारद मुनि, जिन्होंने उन्हें मंत्र दिया। तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा गुरु के बारे में क्या जानते हैं कि शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। और क्या करते हैं शिक्षा गुरु का मेन फंक्शन क्या है कि शिक्षा गुरु होते हैं वो भक्ति में प्रगत होने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, कि धीरे धीरे वो भक्त है वो आगे बढ़ पाए। और वो अभिदेय तत्व के बारे में ज्यादातर ज्ञान देते हैं। अभिदेय यानी क्या कि भक्ति कैसे करना है, वो भक्ति संबंध ज्ञान दीक्षा गुरु द्वारा दिया जाता है। कृष्ण के संबंध कैसे कहते हैं, इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मदन मोहन एंड शिक्षा गुरु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गोविंद देव, ऐसे कहा जाता है। So also a शिक्षा गुरु engages a disciple in a service, अलग अलग सेवाओं में उनके स्किल्स के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार
जो शिक्षा गुरु थे अलग अलग सेवाओं में भक्तों को लगाते हैं। और दो प्रकार के शिक्षा गुरु हो सकते हैं, हम देखा था, एक लिबरेटेड, नॉन लिबरेटेड, जो मुक्त अवस्था में अभी पूर्ण मुक्त हुए नहीं है, बट they will give instruction as per their realization, so that the disciple may advance. Prabhuji, Yes. Yesterday we discussed that counselors should not be considered as Shiksha Guru. But the counselors are the one who gives us When all I these, said, whatever. मैंने कब कहा ऐसे? I never said. But they should be at the stage, at the level of... anybody who shares Krishna consciousness, anybody who tells the knowledge about Krishna is Shiksha Guru. That's what we discussed, right? So anybody who shares about Krishna consciousness is Shiksha Guru. So we can consider our counselor also as Shiksha Guru, correct? Anybody who shares about Krishna, knowledge about Krishna is Shiksha Guru. So they might be counselor, they might be Guru. Why to distinguish only counselor Shiksha Guru or everybody is Shiksha Guru? ऐसा थोड़ी है. जो भी कृष्ण के बारे में हमें ज्ञान देता है वो शिक्षा गुरु. Okay. जनरली जो शिक्षा गुरु आपको रेगुलर कृष्ण के बारे में इंस्ट्रक्शन देता है, आगे जाके वो क्या बनते हैं? दीक्षा गुरु बनते हैं. और शिक्षा गुरु का भी अलग अलग लेवल का कमिटमेंट रहेगा. तो one level of शिक्षा गुरु, they are fully dedicated to guiding disciple until they terminate their term of material existence. And lesser commitment, sometimes they will give instruction as per appropriate. ऐसे नहीं कि पूरे लाइफ के लिए और लाइफ आफ्टर लाइफ की रिस्पांसिबिलिटी. You hear पहले तो कोई कमिटमेंट है ही नहीं, है ना? लाइक शिष्य की साइड से कमिटमेंट है, राइट? ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो कमिटमेंट कि रेगुलरली कोई YouTube पे भी इंस्ट्रक्शन छोड़ के रख रहा है, और दैट इज आल्सो कमिटमेंट. रेगुलरली somebody is sharing Krishna consciousness, right? But there is no direct relationship, there is no bond, right? Now there might be bond where somebody comes and regularly instructs you. आपके घर पे आके कोई रेगुलरली प्रोग्राम ले रहा है, somebody or regularly you're attending some satsang, there is a further more commitment is there, right? And somebody takes even more commitment of personally guiding, checking, answering questions. Not only answering questions, but answering questions on the personal level, understanding कि आप कौन हो, आप कहाँ पे रहते हो, आपका क्या स्थिति है, उसके अनुसार आपकी based on time, place, situation you are in, you get answers to your questions, as per your consciousness. There is even more commitment by Shiksha Guru, right? And they check upon you and they encourage you, they guide and they create services, facilities to engage you. This further commitment, they always predict आगे जाके भक्त को क्या लगने वाला है आगे भक्ति में पढ़ने के लिए, कौन से तत्व उन्हें जानने चाहिए अभी शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए. तो प्रिपेयर ज्ञान उस प्रकार से उस स्तर के अनुसार या जरूरत के अनुसार अलग अलग प्रकार का ज्ञान शिष्य को देते, शिष्य को पारंगत करते हैं वैदिक शास्त्रों में, उसके शास्त्र के अध्ययन में, और शिष्य को पारंगत करते अलग अलग सेवाओं में. ये श्रवण गुरु भी शिक्षा गुरु है इसलिए. बट आप सिर्फ श्रवण कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि श्रवण गुरु है, परंतु देयर इज नो direct commitment. There may not be any relationship also, direct personal relationship between a disciple and a spiritual master. They just hear it, right? In case of spiritual master, there is a direct relationship because the spiritual master, while giving diksha, he accepts, he gives a new name and consciously take a responsibility for a disciple that this is a person I am going to liberate from this material existence. So there is a direct commitment. So there might be varying level of commitment between different shiksha gurus, and based on their commitment, they deserve different levels of respect. ये भी हमने देखा था. दीक्षा गुरु क्या है? दीक्षा guru must know science of Krishna fully. A devotee can have only one initiating spiritual master. Generally, a devotee constantly instructs a disciple regularly regarding his relationship with the Lord becomes a diksha guru. वो दीक्षा गुरु बनते हैं. वो भगवान के प्रतिनिधि है. Actually, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु both are they are the representative of Supreme Lord. साक्षादरित्वेन समस्त शास्त्रे तथा भावते किंतु प्रभोर्य प्रियवे तस्य वंदे गुरु श्री चरणा.
वंदे गुरु, मल्टीपल, नॉट गुरु. तो यहाँ पे हम we offer respects to so many spiritual masters. Diksha Guru takes charge of his disciple, instructs him in the rites of devotional service, and initiates him by bestowing sacred. So generally, Diksha Guru use initiation, use mantra. So Shiksha Guru doesn't give mantra, but Diksha Guru gives a mantra. And he guides him specifically under deity worship, Pancharatrika Vidhi. By giving him a mantra Diksha, second initiation, he qualifies a disciple for rendering service to deities. इस प्रकार से हम देखते हैं कि दीक्षा गुरु कमिटमेंट लेते हैं शिष्य को भगवत धाम भेजने के लिए और उसे ट्रेन भी करते हैं, सो दैट बिकम अ क्वालिफाइड ब्राह्मण. एंड इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मदन मोहन, भगवान मदन मोहन. Even Diksha Guru may be liberated or may not be liberated yet, but he can advance a disciple to the degree he is advanced. दीक्षा गुरु का बहुत बड़ा जिम्मेदारी. कल मैं एक डिवोटी से बात कर रहा था. हिज होलिनेस सचिनंद स्वामी महाराज से दीक्षा लेने चाहते. सचिनंद स्वामी महाराज उनके हालांकि प्रॉपर डिसाइपल है, फॉर डिकेड्स ही इज स्पिरिचुअल मास्टर, बट जैसे कि डिवोटी बता रहे थे उनकी 150 से 200 कुछ डिसाइपल्स. महाराज टेक वेरी वेरी पर्सनल इंटरेस्ट इन एवरी डिसाइपल. बाकी शिक्षा गुरु उनको कोई भी स्वीकार कर सकता है. Anybody can hear his class and follow his instruction. But for accepting as a disciple, उनका है कि he should personally know his every disciple and बहुत personal level पे guide करते हैं. And they are very intimate dealings. He has very intimate dealings with his direct disciples. Maharaj says that Maharaj was telling this devotee, Maharaj told no to this. He wanted to take initiative. दीक्षा लेना चाहते, महाराज ने मना किया कि मैं अभी इंडिया बस रिट्रीट्स के लिए आता हूँ और इसलिए मैं आपको सफिशिएंटली गाइड करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा, हमारा इतना संग नहीं होगा, इसलिए मैं इंडिया में इनिशिएशन देना. आई एम नॉट इनिशिएटिंग एनीबडी इन इंडिया. जो भारत में उनको इनिशिएशन नहीं दे सकता, क्योंकि ये भी बताते हैं, बताया उनको महाराज. और महाराज ये भी कह के अनलेस महाराज कह रहे थे उन्हें कि आपका इच्छा है कि मेरे से दीक्षा ले और मेरा इच्छा है कि मैं इंडिया में इनिशिएट ना करूँ. कृष्णा किसका मन पहले चेंज करते हुए देखेंगे, बिकॉज दिस डिसाइपल वाज एडमंड नहीं, महाराज मुझे आपसे दीक्षा लेना है. तो महाराज कहे कि कृष्णा किसका मन चेंज करेंगे पहले. तो महाराज का ये है कि महाराज जब तक ये डिवोटी मुझे कह रहे थे कि महाराज unless that Maharaj feels that he is my disciple guided by Krishna, Maharaj will not accept that person. Some devotees are waiting for 12 years, 14 years also. But if Maharaj doesn't find that he is my disciple and Krishna has not indicated him, he will not accept that person as his disciple. The devotee is telling. So spiritual master take a great responsibility. Maharaj is telling actually ये बहुत बड़ा जिम्मा है किसी को भगवत धाम लेके जाने का. तो जब तक गारंटी नहीं है स्पिरिचुअल मास्टर को how much this person will follow and how much he's taking responsibility, he may not initiate. So spiritual master take full responsibility, पूरा जिम्मेदारी लेते हैं अपने शिष्य के लिए, उसको भगवत धाम लेके जाने के लिए. तो इसीलिए they deserve the highest regard and respect. And also the responsibility of Shiksha Guru is actually, I'll share, you can read actually, मैं chat में share करता हूँ एक मिनट. Is from the book I just ask you to read. Yesterday we were discussing what is the primary function of a Shiksha Guru. इसके बारे में मैं आपको chat में डाल रहा हूँ. You can read, somebody can read that. Okay, we'll read. कोई पढ़ेगा? Can I, Prabhu? Yes. Diksha Guru does not mean he is speaking something against the teaching of the Diksha Guru. He is not as He is not Shiksha Guru. He is not Shiksha Guru. He is a rascal. Diksha Guru. He is rascal because that is offense Gurur Avagya. First offense is Gurur Avagya.
Defying the authority of the Guru, this is the first offense. So one who is offensive, how he can make advance in chanting? He cannot make. Then everything is finished in the beginning. Guru Rabhagya. Everything is there. If one is disobeying the spiritual master, he cannot remain in the pure status of life. He cannot be Shiksha Guru or anything else. He is finished immediately. Yes. ओके, और एक कोट में शेयर करता हूँ, ये कोई पढ़ेगा? We'll read this. Yes, कोई पढ़ सकता है ये? अंकित तिवारी प्रभु, आप पढ़ेंगे? Yes, Prabhu. Can't see the screen too. चैट में शेयर किया मैंने. Okay. So Shiksha Guru does not mean he is speaking something against the teachings of the Diksha Guru. He is not like. No, अभी शेयर किया मैंने. महाराज के लास्ट का जो शेयर किया. If K Maharaj speaks what I speak, then he can be taken as Shiksha Guru. Guru Shastra Sadhu. The spiritual master is one. That is a fact. K Swami may be taken as Sadhu, not spiritual master, or as instructor Guru. Letter July 20, 1974. तो जब शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के लाइन में बोलते तभी वो शिक्षा गुरु है. जो शिक्षा गुरु की शिक्षा है प्रभुपाद और गुरु की शिक्षा से मैच नहीं करती है, तो वो प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे आपके दीक्षा गुरु को. तो हमें मेनली हमारे गुरु से सुनना चाहिए, तो हम देख पाएंगे कि शिक्षा गुरु कितने लाइन में गुरु से. तो सबसे पहले तो हमें गुरु से सफिशिएंटली सुनना चाहिए. और शिक्षा गुरु का भी कर्तव्य है कि गुरु से वो सुनवाए होने वाले डिसाइपल को, है ना. तो उससे क्योंकि गुरु जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो ये डिसाइपल है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दीक्षा गुरु को फॉलो करना. आर यू अंडरस्टैंडिंग कि शिक्षा गुरु का प्राइमरी रोल है कि he should act like assistant to spiritual master, and he should help a disciple to follow the orders of spiritual master. He should help him to understand Krishna consciousness better, to serve the spiritual master better, to serve the movement better, to serve the founder acharya better by systematically guiding disciples in guiding Krishna, in guiding service to Krishna. तो जो गुरु हमारे फाउंडर आचार्य और हमारे गुरु महाराज के लाइन में हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसे गुरु से हमें ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू फॉलो ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर. यस, समझ आ रहा है आपको ये? तो sometime शिक्षा गुरु attract more attachment in following cases. No, Maharaj says दीक्षा गुरु has been accepted out of formality, कि हमने तो सुना ही नहीं था गुरु से पहले, अभी बाकी सब डिवोटी ले रहे थे, हमने भी उन गुरु से दीक्षा ले लिया, पीयर प्रेशर से ले लिया, इसके कारण. या कभी कभी गुरु से रेसिप्रोकेशन नहीं होता है, गुरु दूर रहते हैं, कभी बात ही करने को नहीं मिलता है, तो फिर इतना गुरु से अटैचमेंट नहीं. तो भक्त तो भी प्रयास करना चाहिए कि गुरु से सुने, एटलीस्ट वाणी जितना अपना सेशन ले, जब भी सेवा का चांस मिले तो सेवा करे, जिससे अटैचमेंट को डेवलप करे. कभी कभी ड्यू टू पॉइंट्स ऑफ एटिकेट इतना गुरु से अटैचमेंट नहीं रहता है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप आपके शिक्षा गुरु से रहता है, और आपके शिक्षा गुरु आपको दीक्षा गुरु के पास, उनके दीक्षा गुरु के पास लेके जाते हैं, उनसे आपको दीक्षा होता है. बट आपके भक्ति की शुरुआत से आपको शिक्षा गुरु आपको गाइड करेंगे, राइट. बट क्योंकि वो इनिशिएशन नहीं दे सकते हैं, सो इसीलिए उनसे इतना अटैचमेंट नहीं होता. और तीसरा बताते कि ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस दीक्षा गुरु कैन नॉट गाइड बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, इल हेल्थ, बैड हेल्थ, बिकॉज सर्टेन रीजन that spiritual master is not able to help. Then disciple develop attachment with other shiksha gurus. So shiksha guru should be accepted with the permission from one spiritual master or guidance of spiritual master, and we should be following the spiritual master, right? These are the cases. Sometimes a disciple might have more attachment to one shiksha guru than one diksha guru, and that attachment is shown. So we should respect. तो ऐसे कहा गया है. ओके, मैं पढ़ने को देता, आपको पढ़िए.
Who can read now? कोई पढ़ सकता है please? Prabhuji, can I? और कोई पढ़ेगा ना? आप तो ऑनलाइन पर मुझे दिख रहे हो। और कोई devotee? Yeah. So, Prabhuji, I'm reading. If one can distinguish between the greater or lesser spiritual strength of a person but does not accordingly offer respect, then that person shall be held guilty for that offenses. Okay. 31. Okay. So भजनामृत कृष्ण भजनामृत इस ग्रंथ में नरहरि सरकार लिखते हैं कि जो डिवोटी देख पाता है कि एक वैष्णव का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और दूसरे वैष्णव का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, he is able to distinguish, but properly वो रिस्पेक्ट नहीं करता है accordingly to their spiritual strength, then he commits an offense. तो हमें वैष्णव का स्तर देख के उनको अकॉर्डिंगली हमें उनको रिस्पेक्ट करना है, ऐसे लिखा है। और कोई डिवोटी पढ़ेंगे आगे, दूसरे कोई डिवोटी? Yes, we'll read. Prabhuji, may I? Yes, Mukesh. A non-devotee may be excused for treating all Vaishnavas equally, but if one is aware of the following etiquette and does not follow it, he is considered an offender. Now he gives some practical advice in the following verses how this distinction is to be practiced. If two Vaishnavas come at the same time, first one has to offer respect to the Vaishnava of greater strength, then offer to the Vaishnava of lesser strength. Thank you. Yes, thank you very much. तो दो वैष्णव एक साथ आए तो जो वैष्णव आध्यात्मिक जीवन में प्रगत है उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। हालांकि अपने गुरु नहीं है समझो, कोई सीनियर वैष्णव से, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। Still, actually, if somebody is a very senior Vaishnava, exalted Vaishnava, so he will deserve a higher respect. But in terms of following the order, one must follow the order of one's own spiritual master in his heart. For a person, where might be so many people around the world, है ना? अपने गुरु हैं। जैसे संसार में कितने सारे लोग हैं ना, कल एक उदाहरण दिया था मैंने, बट अपने पिता हमारे अपने पिता हैं। That our father may not be very powerful person, okay, there are so many other people more powerful, but we will follow our father. Similarly, our spiritual master is our father. हमारे गुरु हमारे पिता के समान है, तो हमारे गुरु का हम पालन करते हैं। हालांकि there might be other people of more spiritual strength than our spiritual master. We don't reject our spiritual master. It's an offense, right? And in Shiksha Guru and Diksha Guru, there is difference. Then we should follow the order of Diksha Guru. इससे लिखा है शास्त्रों में कि if a father or spiritual master or husband is not possessed of outstanding qualities, even still they are still worshipable. Yes, ये भी हमने देखा था। और कल हमने ये भी देखा था कि sometimes it may be seen that Guru may acting like ordinary person, but still because he has given us knowledge and knowledge about Krishna, कृष्ण के बारे में ज्ञान कृष्ण से अभिन्न है, और जो इसलिए जो कृष्ण के बारे में ज्ञान दे रहा है वो भी कृष्ण से अभिन्न है, तो इसीलिए उनका हम still भी respect दें. Sometimes even we may see some worldly dealings, right? We neglect that, we don't pay attention to that, तो भी हम उनको उतना ही आदर प्रदान करते. ये भी हमने कल देखा था. और क्या देखा था कल हमने, आपको याद है? ओके, क्लियर हुआ आपको? और थोड़ा आज तो प्रश्न है किसी का? So we offer different respect means sometimes sitting arrangement, right? Some higher elevated asanas are there or less elevated asanas are there. Sometimes worship has to offer to certain devotee, or the arti has to offer to certain devotee after offering arti to Krishna. जो आरती का लाइन पे हम सबसे पहले किसी को इसलिए रिस्पेक्ट ऑफर करते हैं, किसी को दक्षिणा देते हो, उसमें किसी को ज्यादा कम दक्षिणा देते हैं, या रिसेप्शन कितना बड़ा देते हो. Sometimes some devotees are given very grand, little less reception. So a devotee gives respect to all Vaishnavas, but किसको कितना वैष्णव को कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है रिसेप्शन किसी में, depends on these factors. What? Prabhuji? Yes, Mataji.
प्रभु जी, आपने बताया कि इट मे और मे नॉट बी दैट सारे के सारे जो दीक्षा गुरु हैं वो लिबरेट है ना, लेकिन वो जिस Yes. लेवल हैं वो उस लेवल तक अपने डिसाइपल को लाएंगे। तो फिर ऐसे में वो बैक होम बैक टू गॉड हेड कैसे प्रॉमिस होता है फिर? एक्चुअली फिर वो डिसाइपल को, दो पार्ट है इसके। एक है कि डिसाइपल को पहले ही केयरफुल रहना चाहिए गुरु को चूज करने से पहले, दीक्षा गुरु को चूज करने से पहले। पहला पार्ट इसका ये है। और दूसरा पार्ट ये है कि गुरु को भी प्रामाणिक रहना चाहिए, और गुरु को फिर डिसाइपल को, इफ ही सीज दैट डिसाइपल is sufficiently advanced, then unable to guide, then he should direct the disciple to a other shiksha guru who can take him further, guide in Krishna consciousness. ये हम दीक्षा गुरु की बात कर रहे हैं ना प्रभु जी? Yes, yes. दीक्षा गुरु फिर उसको गाइड करेंगे कि आप इनसे आप लीजिए आगे शिक्षा। और यस प्रभु। डिसाइपल भी चुनते हुए पहले देखेगा कि who can take me ahead. थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न किसी को? बहुत सारे प्रश्न। यस, okay, let me just quickly check if we start on something. So commitment, वो भी हमने देखा था ना। Okay, we discussed that commitment can be understood by the degree of responsibility, measured in time, कि कितना टाइम देते हैं आपको कोई, that is measure for commitment. Taken the amount of risk, personal sacrifice, comforts undergone, and facilities, books, temple, deities furnished by the guru. Guru gives so many books and temples and deities for disciples regularly, so that disciples are sufficiently educated in Krishna consciousness. They are sufficiently educated in worshipping the deities, practicing Krishna consciousness by creating temples. Right? So these are the legacy. जैसे हम देखते हैं कि His Holiness कदम कानन स्वामी महाराज उनके शिष्यों को फैसिलिटी देने के लिए कि उनको लाइफ टाइम के लिए रहे, in the last year of his life he gave so many classes, he gave so much of his association, varieties of his classes actually on different topics, and he did so many kirtans, recorded kirtans, कि उनको लाइफ टाइम उनको डिसाइपल्स के लिए रहे, बहुत सारा खजाना उनके गुरु से संबंध बना कर रखने के लिए he created. So the guru will create all these literatures and temples and worship deities, so that can be worshipped for facilitating a disciple. Okay, और क्या है? जब हमारे Yes, Mataji. he will direct the towards his diksha Mataji, guru है। आवाज थोड़ा Mataji आपको कट रहा था, sorry. आपने कहा कि जब होते हैं स्वयं वो जो डिवोटी होता है वो दीक्षा गुरु। Mataji आपका आवाज कट रहा है, sorry. प्रभु जी अभी आपको भी नहीं नेटवर्क में सुनाई दे। आएगा? Okay, Mataji, yes, अभी आ रहा है, yes. हाँ प्रभु जी, मैंने कहा कि जब दीक्षा गुरु होते हैं तो जो है वो स्वयं जो एस्पायरिंग डिवोटीज होते हैं उन्हें अपने दीक्षा गुरु की तरफ डाइवर्ट करता है ना? Right. की बात कर रहे थे अभी, तो उस कहते हैं कि आप अभी बनाना शुरू करो। Sorry, मेरा वीडियो बंद करता हूँ 1 मिनट. Okay. Yes, others also can stop the video. Yes, Mataji. Again, repeat, Mataji. आ रही है आवाज? It's okay, I'll ask. Okay, ग्रुप में पूछिएगा Mataji. Okay. और कोई प्रश्न है किसी का? So, how we understand potency of spiritual master based upon his learning and faith.
The Guru's potency can be understood based on degree of one's learning, how much spiritual master learned in scriptures, strength of his faith, how strong is his faith in scriptures, his absorption in chanting and hearing, how absorbed he is in process of Krishna consciousness, and his ability to spread Krishna consciousness among non-devotees. How successful our Guru has been spreading Krishna consciousness among non-devotees or not yet devotees. How many devotees our spiritual master has been. So these indicate, if you want to choose like who is very advanced devotee as spiritual master. These are the criteria. So liberated Shiksha Guru is fully. So generally the devotees, not only Diksha Guru, Shiksha Guru also is. So generally they are very absorbed in meditation and devotion service, liberated platform. And they give instruction in terms of objective way of understanding scriptures, how to understand. शिक्षा गुरु नॉन लिबरेटेड शिक्षा गुरु ऑफ कोर्स जो बाकी चीजों में भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे आपके फाइनेंसेस कैसे मैनेज करना है, आपके घर में बच्चों को कैसे पढ़ा करना है. Sometimes non-liberated शिक्षा गुरु may give these instructions also, which are detailed instructions regarding other things apart from Krishna consciousness, based on one's own realization. They are not directly scriptural, but he has one's own realization, and he may share that for advancing his Shiksha disciple. So they are also called as Shiksha Gurus. So they may not be liberated, but they have got that relevant experience कि भाई आपके घर को, आपके फैमिली को, आपके करियर को कैसे मैनेज करना, भक्ति को अनुकूल करना. तो वैसे इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं. So we cannot imitate the conduct of a liberated spiritual master, but we should follow their instruction. And among non-liberated sadhus, those who are juniors to us in Krishna consciousness, we do not follow them. But while peer and seniors, despite they might have minor defects in their character, are still sources of our inspiration. उनसे हम प्रेरणा लेते हैं. और जो नॉन डिवोटी हमारे टीचर्स, they are also respected actually. They are also in one way their teachers. जैसे हमें कभी कभी कोई सिखाएगा, जैसे कोई हमें कोई कोर्सेस हम ज्वाइन करते हैं, जैसे लैंग्वेज सीख रहे हैं, जैसे कोई बंगाली सीख रहे हैं. इट मे नॉट बी दैट बंगाली सिखाने वाला टीचर कोई डिवोटी रहे. इट मे नॉट बी दैट. सो वी मे नॉट फॉलो देम, राइट, बट वी स्टिल रिस्पेक्ट देम. And we accept Shiksha Guru when we are directed to accept by spiritual master. Generally, many times, most of the time, spiritual master says that you must take guidance from devotees, local devotees or devotees. And whose guidance we should accept? He should be well versed in Krishna consciousness, or he should have exemplary behavior in Krishna consciousness. And he should be representative founder Acharya, devoted to his mission. कि गुरु का कार्य बढ़ाने के लिए वो समर्पित रहे. तो ऐसे शिक्षक गुरु से हमें सुनना चाहिए रेगुलरली. एंड यू शुड फॉलो प्रॉपर आचार. तो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा ये जो कभी ट्रेंड आया है कि बेसिकली शिक्षा गुरु में हमारे फाउंडर आचार्य के फॉलोअर रहना चाहिए. अभी many devotees here, so many teachers even outside ISKCON, बट वो हमारे फाउंडर आचार्य को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो फिर so they are not fully qualified to actually play the role of prominent Shiksha Guru life of a disciple. Sometimes certain things were made, but regular hearing and taking guidance from them, it may not be in line with our founder Acharya's principles. So we should be careful. तो कोई शास्त्रों के, साधुओं के और गुरु के विरुद्ध कोई भी बोलता है, और अपने शिष्यों को, अपने गुरु को पालन करने के लिए कोई उनको डिस्करेज करता है, गुरु के टीचिंग्स के अगेंस्ट कहता है कोई, या प्रामाणिक किए बिना मंत्र दे देता है, तो ऐसे शिक्षा गुरु है वो क्वालिफाई नहीं करते, वो डिस्क्वालीफाइड ऐसे शिक्षा गुरु से कहा गया. या कोई भक्ति से जिसका पतन हो जाता है, जो नियमों का पालन करना छोड़ देते हैं, भक्ति से पतन हो जाता है, जो हमारे फाउंडर आचार्य के टीचिंग्स को फेथफुल नहीं रहते, ऐसे शिक्षा गुरु को भी हम स्वीकार नहीं करते. So the Diksha Guru gives initiation, he trains disciples. Shiksha Guru also trains both. So that's how in that term they are both are equal. Let me discuss that. Okay. Okay, we'll discuss a little more. Whatever remaining tomorrow, we'll discuss that. Any question? Last
few questions. If you will discuss that and we'll finish. We'll complete this today's session. तो प्रश्न है किसी का? सुप्रभा सुमित्रा माता जी, yes. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपने शिक्षा गुरु का ये बोला कि शिक्षा गुरु का कार्य होता है कि वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर की, प्रभुपाद की, कृष्ण की ही वाणी को एज इट इज बोले और उनकी ही सेवा में उनको प्रोग्रेस। तो हमें उनका ही सुनना चाहिए, उनकी ही किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन प्रभु जी आजकल कुछ ऐसा ट्रेंड हो रहा है, मतलब अपने ही कुछ इनिशिएटेड डिवोटीज भी ऐसा कर रहे हैं। जैसे मुझे भी मैसेजेस आते हैं कि जैसे अभी प्रेमानंद महाराज है जो उनका बहुत अभी बहुत पॉपुलर वो चल रहे हैं, तो लोग अभी उधर का सुनते हैं और वो मुझे भी भेजते हैं। मतलब वो कुछ शिक्षा गुरु ऐसे है कि वो अपने डिसाइपल्स को भी भेज रहे हैं। तो हम उनको कैसे फिर मतलब कैसे उनको विरोध करें कि आप हमें गाइड ऐसे मत करिए ना, क्योंकि हम लोग अभी इस्कॉन की छाया में, तो हमें उनका ही सुनना चाहिए। किसी और का अगर हम सुनते हैं तो वो अलंकृत भाषा में रहता है, वो हमें डाइवर्ट कर सकते हैं। तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? Actually, first of all, we respect, anybody who is Vaishnava, we respect. Definitely, हम उनको आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं। और एक कोई भी I don't know उनका संप्रदाय क्या है, परंतु वैष्णव है और कोई प्रामाणिक संप्रदाय से है, आदर देते हैं हमें। और इंसिडेंटली कृष्ण के विषय में चर्चा भी हो सके। इंसिडेंटली आई एम टेलिंग, जैसे चैतन्य महाप्रभु इंसिडेंटली इवेंट टू, लेट्स से इवेंट टू उडुपी, सो वहां के वैष्णव के साथ उनका कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में चर्चा हुई। तो दो चीजों में अंतर है। एक है कि आप उनसे कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हो, परंतु उनके टीचिंग्स आप ऐसे नहीं कि आप ऐसे, कभी कभी ऐसा हुआ है रिसेंटली, किसी ने सीनियर डिवोटी कोई महाराज के पास गए थे, इस्कॉन से बाहर, तो उनका वीडियो भेजा, तो कहे कि अरे सीनियर महाराज कैसे जा सकते, परंतु हमें उनका डीलिंग्स में समझा रहा हूँ। समझो आपने देखा कि कोई सीनियर महाराज ऐसे कोई बाहर के वैष्णव के साथ पास में गए और उनसे सुन रहे हैं, उनके कृष्ण के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, तो हमें इस तरह से देखना चाहिए कि वो प्रभुपाद जी को टीचिंग्स को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उन्हें सफिशिएंटली प्रभुपाद जी को जाना है, और जो टीचिंग्स प्रभुपाद जी से मैच करते हैं उसका ही वो स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने शिक्षा गुरु के रूप में उनका स्वीकार कर लिया, उनकी शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं। परंतु कभी भी दो अच्छे वैष्णव मिलेंगे तो किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे। So they will have mostly they'll have discussion regarding Krishna. Like Chaitanya Mahaprabhu used to have discussion about Krishna with so many Vaishnavas. So he used to have discussion. Of course, Chaitanya Mahaprabhu has accepted Ishwar Puri as a spiritual master, he followed him. But as a discussion he had. So कोई बहुत मैच्योर डिवोटी आप देखते हैं कि ऐसे कोई डिवोटी के पास जा रहे हैं या उनसे कभी सुन रहे हैं, समझो, तो हमें समझना चाहिए कि ऐसे नहीं कि उन्हें शिक्षा गुरु के रूप में उनका स्वीकार किया है, बट और वो जो भी शिक्षा सुन रहे हैं ऐसे नहीं कि सारा का सारा स्वीकार करें। जो प्रभुपाद जी के टीचिंग से मैच करते हैं, दे मे एक्सेप्ट, दे नो दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट प्रभुपाद स्पीक्स एंड अदर पीपल स्पीक, राइट? सो समटाइम दे मे सीम टू हियर दैट। अभी नए डिवोटी को बचना चाहिए, अभी प्रभुपाद जी की शिक्षा में पता नहीं क्या है, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी शिक्षा प्रभुपाद जी के लाइन में है, कौन सी शिक्षा प्रभुपाद जी के लाइन में नहीं है। तो हमें बहुत टाइम देना चाहिए कि प्रभुपाद जी की शिक्षा इनिशियल डेज में अच्छे से सुने, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़े, प्रभुपाद जी की बायोग्राफीज पढ़े, और प्रभुपाद जी के शिष्यों से सुने जो प्रभुपाद जी के साथ संग किए हैं। तो हमें जब डिस्क्रिमिनेशन आएगा, है ना, तो इंसिडेंटली आप ज्यादा क्वालिफाइड होते, देन यू आर प्रोटेक्टेड बिकॉज वी आर इन पर्टिकुलर लाइन, राइट? सो दैट्स व्हाई वी फॉलो आवर पर्टिकुलर लाइन। बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली कोई दिखना ही नहीं चाहिए उन भक्तों के साथ में, वो भी भक्त है, राइट? एंड डिवोटीज एसोसिएट, दे शेयर, गिव मर्सी टू ईच अदर, राइट? बट नए डिवोटीज को थोड़ा बच के रहना चाहिए, उन्होंने अपने संप्रदाय में जो शिक्षा है वो समझनी चाहिए। तो इवन शिक्षा गुरु भी, एक्चुअली शिक्षा गुरु को सुन रहे हैं, हमें दीक्षा गुरु को बिल्कुल सुना नहीं है, और दीक्षा भी हो गया हमारा, हम शिक्षा गुरु से सुन रहे हैं, तो फिर हमें हमारे दीक्षा गुरु से भी सुनना चाहिए, क्योंकि वी शुड सी रिफ्लेक्शन ऑफ आवर दीक्षा गुरु, अदर स्पिरिचुअल टीचर्स। We should see how our Shiksha Gurus are helping us to follow order of our spiritual master that way. Thank you so much, Prabhu. Further clarifying the points which are taught by Shiksha Guru. So दोनों points से मैंने आपको बताया है ना, नए भक्तों के लिए और कभी-कभी senior devotees, because we should not judge if some senior devotees see, because we don't know actually. Mostly they are not gone to take any Shiksha, but they are discussing about Krishna and ऐसे कोई किससे बात कर रहा है, शिक्षा अपने पे डिपेंड करता है ना, हम तो कितने लोगों से सुनेंगे, बट हम पे डिपेंड करता है कि किसका शिक्षा हम जीवन में फॉलो करते हैं। बट ये भी है कि आप बहुत रेगुलरली किससे सुनते हो तो फिर डेफिनेटली यू गेट अफेक्टेड, राइट? सो या, सो इंसिडेंटली वन में हियर, बट इट्स नॉट लाइक हमने रेगुलर प्रोग्राम बनाया है और बाहर ही सुन रहे हैं बहुत ज्यादा, राइट? थैंक यू सो मच प्रभु, धन्यवाद।
Okay. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Can I ask you a question? Yes. Prabhuji, here in this reference only, there can be some situation in somebody's life that due to some factors, the devotee may have to attend external program. Yeah, so that could be one of time. So in such a situation, that is what my understanding is. Maybe if I'm wrong, please correct me. So the devotee should have the consciousness that whatever the good they are talking about, or whatever the teachings they are giving, which are good and relevant to our sampradaya, we can just, if it is if they are talking about some Krishna कथा या चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात कर रहे हैं या कुछ अच्छा गुरु के बारे में बता रहे हैं, तो क्या हम उसको टेक होम पॉइंट्स बोलकर ले सकते हैं? Yeah, we can appreciate, अच्छा है, हमें वही हमारा संप्रदाय का क्या टीचिंग हमें बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। और हम भी बुलाते हैं ना, अभी जैसे मीरा रोड टेम्पल का ओपनिंग हुआ था, तो उडुपी मठ के जो स्वामी है, मोस्ट प्रोमिनेंट, forgot his, I'm sorry, but no, he had come. हरि बोल प्रभु, I think मैं अनम्यूट हो गई थी। Yeah. So मैं कह रहा था कि इस्कॉन में भी हम कभी-कभी बुलाते हैं, जैसे उडुपी का जब मीरा रोड टेम्पल को ओपनिंग हुआ था, तो उडुपी के जो हेड स्वामी जी थे उनको बुलाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया भक्ति के बारे में, कृष्ण के बारे में। तो ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे को मिलते हैं, इंसिडेंटली यू गेट टू हियर डेफिनेटली व्हाट यू आर मैचिंग टू आवर संप्रदाय एक्सेप्ट, राइट? तो बट हमारा डिस्क्रिमिनेशन डेवलप होना चाहिए उसके लिए, तब हम समझ पाएंगे क्या लाइन में क्या लाइन में नहीं है। नहीं तो पूछना चाहिए सीनियर डिवोटी से, ऐसे ऐसे बोलते हैं, लाइन में है नहीं है क्या है, ठीक है? Okay, I think. At the same time, I was just saying कि if we see somebody attending some XYZ program, हमने भी उनको जज नहीं करना चाहिए, because हम नहीं जानते कि वो कौन से सिचुएशन से वहां पे क्यों गए हैं। Right. Yes. We should not judge. But Prabhuji, it is all better not to hear in your own sampradaya. I mean, when we have everything, then why do we have to? Basically, मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल हर एक के स्टेटस में ना वृंदावन के अलग अलग गुरु हैं ना, तो फिर हम जब उनकी कोई फिलॉसफी जानते नहीं है, मतलब जब हम कह रहे हैं इंसिडेंटली किसी को लाइक जैसे आपके मंदिर में कोई स्वामी जी आया, या आप कहाँ पे गए और वहां पे वैष्णव डिफरेंट, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी हर की इस फिर उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है। इट फील्स लाइक नहीं ये भी चल बात कहाँ जाएगी प्रॉपर्टी, और बेसिकली हमको उनकी फिलॉसफी मालूम ही नहीं है। यस, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रेगुलरली नहीं, इंसिडेंटली सुनता है। आई एम नॉट टेलिंग रेगुलरली, इंसिडेंटली कोई सुनता है तो, बिकॉज वैष्णव ये भी है कि देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट बिटवीन वैष्णवस एंड समटाइम like two Vaishnavas may discuss, so that is not that they accepted as them as senior devotees they see. Junior devotees definitely अपने संप्रदाय में पूरा सुनना चाहिए, और senior devotees also they do that same, they hear in our परंपरा। इंसिडेंटली कोई डिवोटी किसी और गुरु के साथ पास में गया और कुछ सुनते हुए दिखा दिया, तो हम ऐसे समझना चाहिए कि ऐसे नहीं कि उन्होंने शिक्षा गुरु में स्वीकार किया है, they are having some कृष्ण कथा and that this senior devotee has some discrimination कि क्या कृष्ण की लाइन में है, सॉरी जो हमारे संप्रदाय की लाइन में, प्रभुपाद जी क्या लाइन में और क्या नहीं है, और जो लाइन में वही वो अप्रिशिएट करेंगे, राइट? बट फॉर अस if you get to incidentally hear something is fine, the speaking about Krishna, but इससे नहीं कि हम रेगुलर प्रोग्राम बनाए और बस वही सुन रहे हैं, हमारे आचार्य को, हमारे जो प्रभुपाद जी है उनके फॉलोअर्स को हम नहीं सुन रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, we should, our staple food, regular diet, Krishna conscious nourishment should be Srila Prabhupada, his books, his followers, their books, like that, definitely. प्रभुपाद जी की किताबों में सफिशिएंट सारे इंस्ट्रक्शंस हैं एक्चुअली, जो बाहर के जो भी कहेंगे आप ढूंढोगे तो प्रभुपाद जी की किताब में सारे मिलेंगे। एक्चुअली हमने उसका ठीक से अध्ययन नहीं किया, तो हमारा प्रॉब्लम है। ओके, तो आई थिंक दिस सफिशिएंटली क्लैरिफाइज। अभी हम क्लोज करेंगे, कल आप प्रश्न पूछिएगा, ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे और फिर क्लोज करेंगे।
हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Ram Ram. Dandat Pranam Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Dandavat pranam. Hare Hare Krishna. Krishna, Prabhuji. Dandavat pranam. Dandat pranam, Prabhuji. दंडवत Hare प्रणाम Krishna, Prabhuji. Dandavat pranam. दंडवत प्रणाम